All right. Hi, Assalamu alaikum, Namaskar, everyone. Thank you so much for joining in. I really appreciate everybody taking out the time and also for being patient in these first 5, 6 minutes where we were dealing with a few technical glitches. I know that there are a few people who are from abroad. They're not from Pakistan, and I welcome them specially. I would like to ask how many of you guys are here who do not understand Urdu? So, आप chat box को use करें. So use the chat box and let us know if you guys don't know Urdu. So we are aware of how many people are there that we need to make sure um, that they understand everything and we stay bilingual. So do we? I don't under. Okay, there's one person who said that they don't understand Urdu. Okay. Anybody else who does not understand Urdu or Hindi? Anybody else? Okay, 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 perfect. I think most of the people. Okay, you understand Hindi. अगर हिंदी समझ आती है तो उर्दू समझ आ जाएगा. और हम कोशिश करेंगे कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करें. उर्दू हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करें. बाइलिंगुअल रहें ताकि everybody can understand. You guys will not be able to um, speak up during the session because we have limited time and we want to make sure that we cover everything that we are going to share. But feel free to use the chat box and ask all your questions there. और हमारी team यहाँ पे मौजूद है. They will be able to assist you with any of your questions. My name is Danish Khan and I'm the founder of Kickset Preparations. And I will be here for the first half of the webinar. For the first 20-25 minutes, I will talk about Kicksat. I'll talk about myself. और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जितनी भी बातें मैं किकसैट के हवाले से बता सकता हूँ और सैट के बारे में बता सकता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑल राइट. सो किकसैट का विजन और मिशन यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद है. कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? Okay. So Kicksat का mission vision ये है that we want to bridge the gaps to make standardized testing accessible and affordable to all, which means के हमारी कोशिश ये है कि जो standardized tests हैं जैसे SAT है, GRE है, IELTS है, we want to make sure that everybody is able to get training for these tests because अगर आप market में जाते हैं किसी भी जगह पे all around the world इन tests की preparation काफी ज्यादा expensive है और हम शायद वो वाहिद इदारा है in Pakistan that offers up to 100% financial aid. So we try कि हम उन लोगों तक इस टेस्ट को पहुंचा सके और उसकी तैयारी उन लोगों को करवा सके जो शायद किसी और इदारे में नहीं पढ़ सकते बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे. और हमारा मिशन ये है कि हम 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू ट्रेन देम विद सैट जीआरई एंड आइल्स. अब तक हम तकरीबन वन तकरीबन अब हम 1000 के टारगेट के करीब जा रहे हैं बट हमारा टारगेट ये है कि हम 2025 तक ये जो टारगेट है हमारा 10,000 का वो अचीव कर सकें एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक विद रिगार्ड्स टू दैट. Okay, so Kickstart preparation is all about kicking hurdles out of your way to make standardized testing affordable, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया. I see a few people commenting. Unfortunately, we can't let more than 100 people in because of the Zoom restrictions. So the meeting is recorded. जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं या अगर आप अभी मीटिंग से निकल जाते हैं for any reason, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी unfortunately. We offer SAT, GRE and IELTS preparation. SAT पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए यूज होता है. ये वैसे यूएस का टेस्ट है. यूएस के अंदर तमाम कॉलेजेस में बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सैट की रिक्वायरमेंट होती है. जीआरई इज अनदर टेस्ट बट ये मास्टर लेवल के लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम लेवल के लिए होता है और ये भी यूएस का ही टेस्ट है मगर ये पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है और दूसरे ममालिक के अंदर भी एक्सेप्टेबल है. आइट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा. आइट्स इज बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ये ज्यादातर यूरोप नॉट यूरोप यूके और ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन ममालिक के लिए यूज होता है. आइट्स के जैसा एक और टेस्ट है टॉफल के नाम से वो अमेरिका के लिए यूज होता है एंड वी ऑफर द प्रिपरेशन सर्विसेज फॉर ऑल ऑफ दीज टेस्ट. हमने किकस्टार्ट की बुनियाद रखी थी इन 2018 और हमने 2018 के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन पढ़ाया था जिसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स वर टॉट. और हमने इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया इन 2019.
2019 में किकस्टार्ट के नाम से हमने अपनी क्लासेस को ऑफर करना शुरू किया। हम सिर्फ ये सर्विसेज ऑफर नहीं करते, सिर्फ सैट जीआरई आइल्स नहीं पढ़ाते। हमसे मुराद मेरी टीम और हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को जिस हद तक मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं अबाउट देयर एकेडमिक एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ, हम वो गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ अब हमारे पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लम से ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। पहले वो हमारे पास आए, उन्होंने सैट की तैयारी की, देन दे वेंट फॉर देयर बैचलर्स, देन दे वेंट फॉर देयर मास्टर्स एंड पीएचडीज। सो हम उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी वो स्टूडेंट्स हमारे करंट स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वो गाइडेंस प्रोवाइड करने का भरपूर मौका देते हैं। Here are a few interesting numbers about KickSat. अब तक हम 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। 150 प्लस हमारे सक्सेसफुल एडमिशंस हैं। There are 61 people, 61 students who are studying at LUMS. And for those who do not know LUMS, LUMS is one of the leading institutions in Pakistan. I graduated from LUMS as well, and all of our instructors are graduates from LUMS as well. अभी तक हम 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुके हैं। और टोटल सेशंस जो हमने अब तक ऑफर किए हैं, तमाम सेशंस मिला के सिंस 2018 हमने 45 प्लस सेशंस ऑफर किए हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? There is a question about SAT and LCAT. So for people who are planning to apply for LUMS, वो जारी बात है LCAT को कंसिडर कर रहे होंगे। LCAT और SAT का जो सिलेबस है, द करिकुलम इज प्रीटी सिमिलर, और उसके अंदर कंटेंट सारा का सारा सेम रहता है। सो इफ यू गो ऑन द LUMS वेबसाइट, you will see that it's very clear that in order to prepare for LCAT you have to prepare for SAT. So SAT अगर आप नहीं भी देते, that's not an issue, आपने तैयारी उसी सिलेबस में से करनी है। When it comes to myself, I have more than 7 years of experience in the learning and development sector. तो मैं ट्रेनिंग सेक्टर से वाबस्ता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। I started a small non-profit which was called Ilm Kada, and I started in 2017, 2020 तक इसको हमने actively run किया, and we worked with more than 5,000 students across Pakistan, and in total I worked with more than 200 volunteers, which is a big number. I worked in an educational company as a trainer, program manager, and then operations manager as well. And I designed and executed an advanced learning leadership program in Pakistan as well as in Sri Lanka. I was a business enterprise coach in Impact Hub Bradford, which is in the UK. I'm currently based in the UK, and I currently work as a product manager in a US-based edtech company, which is called Health Tech Academy. I graduated from LUMS in 2021, एंड अचीवमेंट्स के अंदर ये है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया है, और इसके अलावा बहुत सारी और अचीवमेंट्स हैं। सो आई थिंक के सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एबल टू गेट एडमिशंस एट द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू आवर हेल्प। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू एनेबल सेल्फ बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। हम चाहते ही हैं कि आप लोग हमारे सेशंस में आए, लाइव क्लासेस लें, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके जिंदगी में कोई और कमिटमेंट है, आप कहीं साथ में पढ़ रहे हैं या आप जॉब करते हैं, वट एवर इज द केस, यू आर एबल टू लर्न अकॉर्डिंग टू योर ऑन पेस। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, आप उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं आफ्टर द सेशंस एज वेल। तो लाइव सेशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। और साथ में हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको गाइड भी करते हैं कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल पब्लिकली, एंड यू कैन यूज दोज रिसोर्सेज। हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लेकर चले। ऐसा ना हो कि हम क्लास में आए और बस जो हमने टॉपिक सोचे हुए हैं बस वो टॉपिक्स कवर करके क्लास से चले जाए। वी मेक श्योर कि हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग देख सकें, समझ सकें कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड इफ वी फील दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू चेंज आवर वे ऑफ टीचिंग। हमारे इंस्ट्रक्टर्स फोकस करते हैं कि वो देखें कि स्टूडेंट्स क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो what is extra help that we can offer to them. इसके बाद, yeah, I think I'll have to remove the annotations. Wait a second, let me see. Note. Okay, Fahim, you need to stop doing this because we can see who it is. Amara, can you see the option? Can you try to find the option to disable the annotation, please? All right.
और हम कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें. एंड ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर free of cost. We don't charge extra for any of the resources that are provided. We compile those resources. The instructors compile those resources especially for you guys. We also provide mentorship. हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एज एन इंस्ट्रक्टर काम ना कर रहे हो, वो एज अ मेंटोर काम कर रहे हो, ताकि वो आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकें हर हवाले से. और हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं ये दोनों ही एम्पावर्ड फील करें. जिस भी तरह से वो पढ़ना चाहें हम उनको हर किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑफर कर सकें. अमारा, कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, so guys, we will absolutely have time for questions at the end of the session. Please make sure that you keep your questions with yourself till the end of the session. End पे जाके हम आप लोगों को भरपूर मौका देंगे to use the chat. So अभी के लिए let's just focus on what we are discussing. And if I ask you something, जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ, तो आप उसका जवाब जरूर दें. लेकिन कोशिश करें कि उसके अलावा हम चैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे. So I want to ask how many of you guys have appeared for SAT or LCAT previously. If you haven't appeared, don't worry, don't answer. Just say yes if you have appeared for SAT or LCAT previously. अगर आपने SAT और LCAT पहले दिया है, पहले दे चुके हैं, okay, there are few people that I see who are saying yes. Okay, they're mostly their no's. Okay. Um, all right, let's move on to the next slide. Amara, can you move on to the next slide? Okay. So SAT, which is International Standardized Test, it is known as Scholastic Aptitude Test. That's the abbreviation for SAT. And this is used for admission for the colleges in US primarily. और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इदारे जो हैं वो सैट को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें लम्स शामिल है, नस शामिल है, आईबीए शामिल है. And this is something that I want all of you guys to keep in mind. Although there are a lot of people जो सिर्फ lumps का सोचते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है if you think about lumps, but make sure that you also have other options open. आप बाकी इदारों के अंदर भी अप्लाई करें, और आप उनको अपने बैकअप के तौर पर जरूर रखें. हमारे सेशन की सॉरी जो टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे और 14 मिनट होती है, 2 hours and 14 minutes. इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक मैथ का और एक इंग्लिश का. और इसमें दोनों सेक्शंस के जो आगे तफसील है वो आपके सामने मौजूद है. दोनों सेक्शंस के अंदर 800 स्कोर होता है ईच. सो टोटल स्कोर 1600 होता है, और एक सेक्शन का स्कोर 800 होता है. इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग का कंपोनेंट है, जिसके अंदर 64 मिनट्स आपको अलॉटेड होते हैं. और वो 64 मिनट्स के आपके पास दो मॉड्यूल्स आते हैं, 32 मिनट ईच. और इसमें टोटल क्वेश्चन 54 होते हैं. सो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर आपके पास तकरीबन 1.2 minutes हैं to answer each question. That's not a lot of times. You also have to read the passage or the paragraph that is given alongside with the question. So it's not a lot of time. So you need to have better analytical skills and better reading skills. और inshallah throughout this course, Myra जो हमारी English की instructor है, she will help you guys build that muscle to read better. देन मैथ के अंदर 70 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 70 मिनट्स होते हैं इन टोटल, और क्वेश्चंस होते हैं 44, विच शोज कि मैथ में थोड़ा सा टाइम आपके पास पर क्वेश्चन ज्यादा होता है. और मैथ की आपको सारी टेक्निक्स एंड टेक्टिक्स अली रजा सिखाएंगे, हु इज आवर मैथ इंस्ट्रक्टर. टोटल हमारे पास जो टाइम होता है वो आप लोगों के सामने है, 2 घंटे और 14 मिनट, 2 hours and 14 minutes. एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 98. जो मैथ और इंग्लिश के दोनों सेक्शंस हैं, इनके बारे में ज्यादा तफसील से, ज्यादा डिटेल से आपको अली और मायरा बताएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट डू वी हैव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, I think this is something that they can cover as well. सेक्शंस की डिटेल्स हैं, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और आपने किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करना होता है. इसके अलावा व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड?
Okay, so what is LCAT? So LCAT is a similar test to SAT, लेकिन SAT अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। आप जब उसको रजिस्टर करते हो और जिस भी इदारे में जाके आपने टेस्ट देना होता है, वहां पे यू हैव टू डू इट ऑन अ कंप्यूटर. It's a LUMS college admission test. LUMS is that institute that I was mentioning where I graduated from as well. It is required for people to do LCAT if they want to if they want to get admission at LUMS. लेकिन एलकैट देना मैंडेटरी नहीं है. मैंडेटरी है कि आप कोई भी एडमिशन टेस्ट जरूर दें, या सैट दें या एलकैट दें या दोनों दें. अगर आप दोनों देते हैं तो देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू गेट शॉर्ट लिस्टेड एंड गेट द एडमिशन एट लम्स. इस टेस्ट की एडमिशन सॉरी इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 2 hours and 20 minutes का होता है. ये हमें स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मिली है. और इसके 4 सेक्शंस होते हैं. मैथ का कैलकुलेटर सेक्शन होता है, नो कैलकुलेटर सेक्शन होता है, इंग्लिश रीडिंग होती है, इंग्लिश राइटिंग होती है. यूं 4 सेक्शंस होते हैं. इसके मैक्सिमम स्कोर हमें पता नहीं है क्योंकि कभी स्कोर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया लम्स की तरफ से. और इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे जो एनओपी का भी सेशन लेकर आ रहे हैं, और हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी जानते हैं जो आपको ड्यूरिंग द सेशन इस हवाले से और चीजें भी बताते रहेंगे. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ का जो सेक्शन है वो एलकैट का थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सैट, और इंग्लिश इज ईजियर. और स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं कि कॉलेज पांडा की जो मैथ की बुक है अगर आप वो इस्तेमाल करें, जो आपको हम पीडीएफ में फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो वो आपको मैथ की प्रिपरेशन में हेल्प करती है. बट आप जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे भी इस हवाले से राय ले सकते हैं. दे कैन गाइड यू अबाउट इट बेटर. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, go back to the previous slide. So before we give it back to the team, and Myra will be the next person joining, and she's our English instructor, and she will talk about herself. I would want to introduce. Okay, Rita is not here. Okay, so we have one of our students who will be joining us shortly. She's not here as yet, but she will be here very soon. And whenever she's here, we will ask her to introduce herself, also share her experience with KickSat. She just graduated from LUMS, I believe. So हम चाहेंगे कि Rida अपना experience share करें. So please stick around. She will be sharing her experience with you guys. Or from my side, this is it. It was really nice talking to you guys. My team is here. They will be able to answer all of your questions. And I'm really, really happy to see so many people asking so many questions. There are a lot of people who are also feeling like ये इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं, chat को बंद कर दिया जाए. ऐसा नहीं होता. We want everybody to feel part of this little group that they are part of, and we will try to answer everybody's questions. हाँ, ये जरूर कोशिश करेंगे सवालों को सेशन के एंड पे पूछे ताकि हमारी टीम के लिए आसान हो to answer all the questions, because we have about 100 people who have joined. It would be easier to deal with the questions at the end. But again, thank you so much everyone for joining. I will sign off now. If you guys want to reach out to me, feel free to reach out to me using my email that I can share in the chat. आप वो email copy कर सकते हैं. But otherwise, my team is here to support you guys. आप लोग ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं जो हमारा वेबिनार का ग्रुप है. और my again Umaima is there, Amara is there. They will be able to assist you guys. I am just sending my setprep.org. I'm sending my email in the chat, so you guys can reach out to me whenever you guys want. Thank you so much everyone for joining again. I will hand it over to Myra, who is our English instructor, and she will take over from here. Take care everyone, and best of luck for your preparation with KickSat. And I hope to see all of you guys, most of you guys, signing up for our upcoming session, which is going to start from 10th August, this Saturday. So I hope to see most of you guys there. Myra, over to you. Hello, everyone. Can you all hear me? Yep, we can. Okay, great. Okay, so how are you all? All the students I can see in the participants list. So I think I know many of the students. Same is the case with you as well. So I taught you guys in the NOP session as well. Okay, so I'm getting some comments right. Okay, great. So first of all, I'll introduce myself for those of the students who don't know me. And let me start off. So I'm Myra. I'm from LUMS, and I'm doing major in economics and minor in environmental studies.
And I was the high achiever in O and A levels, and I got 1560 on SAT. So now I have the expertise, I think, that I can share with students, और उससे काफ़ी students को काफ़ी ज़्यादा advantage भी मिलता है. And I have the teaching experience of almost 6 years now. Like I taught at different ventures and I taught at LUMS as well. So in the NOP session and soft skills session as well. And Kicksat is very close to me because I have given very like many sessions here, and I have a wonderful experience. Like the team here and the founder, Sir Danish, is also amazing. So I hope कि आप लोगों को भी इस session से काफी ज़्यादा advantage मिले. And I've taught local and international students as well. So like over 700 students now. So अब मुझे idea हो जाता है कि like students कहाँ पर lack कर रहे हैं English में, because it's a difficult one. Like इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, writing की होती है, reading की होती है, which you need to know. Otherwise आपसे नहीं होगा SAT. ठीक है? So इसमें हम session जब आपको करवाएंगे, so मैं उसमें आपको हर चीज़ करवाऊंगी. In our 7 sessions, we'll be able to complete everything. So don't worry about that कि 7 weeks में होगा या नहीं होगा. So अगर मैं आपको एक overview दूँ about the digital SAT or the LCAT reading and writing, so हमारे पास 4 basic modules हैं. So first one is craft and structure. यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे content domain में. So in craft and structures, we have word and context, text structure and purpose, cross text connections. अभी हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा समझ ना आए कि वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, पर्पस क्या है, कनेक्शन किस तरह से होना है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द सेशन, सो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़. इसमें आपके पास मेन आइडिया क्वेश्चंस, पर्पस क्वेश्चंस, कमांड ऑफ एविडेंस क्वेश्चंस, इन्फ्रेंसेस क्वेश्चन, ये सारे इंक्लूड होते हैं. टेक्सचुअल एविडेंस रिक्वायर होता है, सो वो हम अगेन सेशन में कंप्लीट करेंगे. Then we have standard English convention जिसमें हम mainly देखते हैं writing module को. So we have tenses, structure. I hope आप लोगों को idea होगा comma styles, जिन students ने मेरे से पढ़ा है, comma styles, run on sentences. So ये चीज़ें मैं दोबारा से यहाँ पर भी cover करवाऊंगी. ठीक है. The last one is expression of ideas, rhetorical synthesis जिसमें आपने graph को read करना होता है, paired passages को करना होता है. So everything on that note. Okay, so this is the general overview that we are going to cover in the session. So I hope that you join the session and you take the most out of it. And I'll be here for the rest of the session. और आपके जो queries होंगी, आपके questions होंगे, I'll be there to answer in the end. So over to Sir Ali. जी अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ सही से आ रही है? प्लीज ये एक दफ़ा कंफर्म कर दो। Yes, Ali, we can hear you. ओके ओके। अच्छा, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स इन 2022। और मुझे टेस्ट प्रेप सेक्टर के अंदर बेसिकली 5 साल हो गए पढ़ाते हुए। आई हैव टॉट ई कैट एन ई टी। आप कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का टेस्ट का नाम लो, मैं बेसिकली किप्स के साथ में पढ़ा चुका हूँ, स्टार्स के साथ मैं रिसेंटली पढ़ा रहा था पिछले दिनों में। और आई हैव बीन बेसिकली टीचिंग एस ए टी जी आर, बहुत सारी कंपनीज के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा आई हैव बीन आई हैव टॉट जी आर ई क्वांट सेशन फॉर लम्स सेंटर फॉर कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन स्टडीज़। और उसके अलावा मैंने लम्स के ओपन हाउस के ऊपर जी आर ई की वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाई हुई है। आई हैव बीन एन ओ पी इंस्ट्रक्टर फॉर मैथमेटिक्स 2 साल में। बेसिकली 2020 और 21 में अगर कोई स्टूडेंट आया हो तो ही और शी में नो मी, अगर वो एनएफपी में है। और have been silver medalist in FSC board exams. I have been second position holder in Pakistan PSF's talent hunt program in all over Pakistan. NUMS के अंदर I have been NOP and merit scholarship holder, and this is something मेरे ख्याल से छोटा सा overview मेरा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, अब मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको सेट के जो मैथमेटिक्स है उसको आसान से आसान अल्फाज में मैं सिखाऊं। अगर सेट के मैथ की बात की जाए तो बेसिकली आपके पास एक सेक्शन होता है, 2 मॉड्यूल्स होते हैं। आपके पास जो क्वेश्चंस की मेन डोमेन है वो होती है अलजेब्रा की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस की होती है, एडवांस मैथ्स होती है, ज्योमेट्री के होते हैं क्वेश्चन, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं।
और ये बात नहीं है कि ये आपने कभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यानी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एनओपी से ही इस साल के एनओपी के ज्वाइन किए हुए हैं इस सेशन को। तो आप लोगों ने एनओपी के सेशन में भी ये कॉन्सेप्ट्स को आई एम क्वाइट ऑफुल आप लोगों ने पढ़ा हो। जो अभी सर दानिश ने भी आप लोगों को बताया था, वी विल बी फॉलोइंग बेसिकली कॉलेज पांडा, और वो बुक आपको जरूर हम फॉलो भी करवाएंगे। उसके अलावा भी एक दो बुक्स में आप लोगों को फॉलो करवाऊंगा। अच्छा, मॉड्यूल के बारे में बात की जाए तो बेसिकली क्वेश्चन आसान से स्टार्ट होते हैं, आपके पास मुश्किल आते हैं। और क्योंकि सेट जो है वो डिजिटल सेट है, तो वो एक अडॉप्टिव टेस्ट है कि आपके पास जैसे जैसे आप आसान से आसान क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हो, वैसे वैसे आपके पास मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। और 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास इन कॉन्टेक्स्ट या फिर वर्ड क्वेश्चन होते हैं। आपके पास बड़ी बड़ी पैराग्राफ्स होंगे, चाहे वो साइंसेस के ऊपर हो, सोशल साइंसेस के ऊपर हो, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के ऊपर हो। लेकिन उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आप किस तरह से उसमें से मैथमेटिकल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हो और उसको अपने यूज में लाते हो। ठीक है। सेट के लिए कैलकुलेट दोनों जो सेक्शन होते हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। लेकिन अगर आप एलकेट की बात करो, एलकेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और मेरा जो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कैलकुलेटर छोड़ ही दो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है कि ऐसे ऐसे आप कैलकुलेटर जैसे जैसे आप, यानी मुश्किल होता है शुरू में कैलकुलेटर को छोड़ना, लेकिन ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे खुद मैनुअली मेंटली आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस इतनी हो जाती है एट द एंड ऑफ द सेशन कि आप लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं होती। और नेक्स्ट स्लाइड, इफ देयर इज एनी। ओके, हमारा टू यू, थैंक यू। Hello, everyone. Now that we have had our introduction from the instructors as well as have the description of the SAT, अब हम जो है let's ask you guys a few questions. के how many of you guys are planning to move abroad or to study at LUMS? Please answer in the chat box. Right. So I see a lot of people who are going to be applying to LUMS as well as abroad. So abroad, maybe you guys can specify with which country will you guys be applying to? Will you guys be applying to US? Will you guys be applying to UK or any other countries? Nice. I see Hungary. I see LUMS. I say USA. So here at Kickstarter, हम continuously sessions करवाते रहते हैं that cater to these universities in particular. We had a LUM session, and we will also be having the session for Hungary as well as USA, where we'll be targeting the admission process as well as the scholarship program. So stay tuned. Also, for those of you who will be getting enrolled in this session, we're going to offer the help for university admissions via our newly launched Dream University initiative. So, if you guys join in, we will be helping you with everything from including your personal statement और जो भी आप लोगों की जो हम आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में गाइड करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में. So do join our next session if you are preparing, if you want to prepare for the SAT, and we will help you guys with everything else as well. All right, I see LUMS, Germany. Great.
So, guys, we have a surprise for all of the participants who have joined the session. And so, basically, all of the participants who have joined this session, we are basically going to offer you all a 20% off on our upcoming SAT and LCAT session. Uh, the timings and the dates or days for our session is below. On Fridays, we take tests, or my session ki fees is 30,000 rupees, and it will be 24,000 after this discount, which is one of the most generous discounts we offer other than our financial aid program. Um, our instructors will be Ali Raza and Myra, those who have introduce themselves in the session, and it will be 7 weeks long, and it will begin on the 10th of August. So, so to sign up for the session, and you can avail our special discount. Right. So we have our alumni joining us very soon. We're waiting for her. Right now, I want all of you to put your questions in the chat box, and our instructors can answer them for you all. All right, Ali and Myra, are you guys reading the questions? Yeah, up here. Yes. Okay, so there is a question in the chat box by Shankar. So how many MCQs in LCAT? So it is not disclosed. So don't focus on the pattern कि कितने MCQs होंगे, कितना time होगा. Focus on the material, okay? So जब आप English और Maths पढ़ोगे, so अगर अच्छा आपसे हो जाता है, well and good, because then we don't need to worry about the number of MCQs, ठीक है? Krishna, you are asking about the setup inside the testing center. Like for SAT, there are several centers. So setup classroom होती है और laptop होता है आपका. और अगर lumps में होगा, because I heard कि last year centers काफी like lumps में नहीं बने थे, but different universities में बने थे, तो उनकी university होगी. That's it. Roman, you were asking, can we get into lumps if we get 1080 marks in LCAT? So aim आप high के लिए करें वैसे, but in some cases lumps accept those people as well जिनका low score हो, but it depends on your overall profile. Like आपकी जो personal statements है, फिर आपके FSC के marks, metric के marks, co-curricular, वो सारी चीजों को देखता है. It's a holistic process. So Talit, you are asking about. Assalamualaikum, Maya. I think I will have to cut you a little. Rida is here and she's a little bit short on time, so we'll just get her to speak for 10-15 minutes and we'll get back to you. Is that fine? Yes, yes. Okay, thank you so much. Rida, are you here? Okay. Rida, you can speak now. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, we can. Oh, sorry. It was not letting me speak for some reason. I don't know why.
Okay, so Assalamu alaikum everyone. I'm Rida Azam, a LUMS graduate from STSB Business School, and like I graduated in management sciences background uh, in 2024. So I'll tell you a little bit about my journey from NOP and then KickSat and then LUMS. So I attended the NOP session in 2019, and then after that, although we prepared for SAT at that time, only SAT was there. So we prepared for SAT from LUMS NOP session as well. But then after that, I felt like I need to prepare more, since that the part that NOP covers is kind of only an introduction, and you do need to prepare more for it. So I joined KickSat because other academies are very expensive and all that. So we were taught English by Danish and SAT maths by Rohan. So they also helped us in applying to LUMS, which was the part that differentiated KickSat from other academies, in a sense that wouldn't be having LUMS guidance and any other kind of guidance in applying to LUMS. So I got some of the Rida, we people have are a asking. question. What was your SAT score? My SAT score was 1260. Yes, from what I remember. So after that we joined LUMS, and social life and all that, वो LUMS का काफी एक cool part था. प्लस एक जो added part है जिसके अंदर जब आप ग्रेजुएट करते हो LUMS से, वो हम देख रहे होते हैं आजकल के. अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज में लोगों को देखें विद इन पाकिस्तान और LUMS ग्रेजुएट्स को देखें, तो आपको ऐसे शायद बहुत कम चॉइसेस मिले हैं, शायद मिले ही ना IBA के अलावा, जहाँ पे हर ग्रेजुएट ही 1 लाख अबव अर्न करे. सही है. तो उसके अलावा कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं. LUMS से आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है. बाकी इसके अलावा आई थिंक आई वुड लाइक टू आंसर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दैट वुड बी ग्रेट, बजाय इसके कि मैं अपना ही कुछ ना कुछ बोले जाऊँ दैट्स नॉट इवन रेलेवेंट टू यू. Does anyone have any specific questions? How it end? All the Kickstart session for free. You just need to, I think, fill a form. Tell Danish or anyone else in the team जो कि आपको फ्री में एनरोल कर देंगे जितनी भी आपको फाइनेंशियल एड की जरूरत है. आई थिंक उमाइमा कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटर. Yeah, we'll be addressing this Yeah, we do question have a very financial aid soon. process. Hmm. Yeah. ठीक है. Any other questions? अच्छा, लम्स LCAT में मैंने अभी रिसेंटली ये सुना है कि LCAT की जो मैथ्स है ना, वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है. अभी हम लोग रिसेंटली NOP सेशन में वॉलंटियर्स भी थे, आप लोगों में से शायद कुछ हो हमारी क्लास में भी. तो LCAT थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है SAT की निस्बत, लेकिन उसकी मैथ्स अनप्रिडिक्टेबल होती है. कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है. SAT की मैथ्स जो है वो ऑफ कोर्स आप SAT के पास पेपर से प्रिपेयर करोगे, जो कि मेरे ख्याल में KickSat में यूज होते हैं. सही है. तो वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होगी, बट इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ योर मनी. अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? व्हाट बेनिफिट्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स इन LCAT? मेरा नहीं ख्याल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट्स फिर ये हो सकते हैं कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करें और वहाँ पे SAT रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं यूनिवर्सिटी जो SAT मांगती हैं. अच्छा, LCAT का मेरा नहीं ख्याल कोई बेनिफिट होगा. देखो, जो भी आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट मिलेगा ना, जिस तरह से LCAT लम्स का अपना टेस्ट है, उसका आमतौर पे यही होता है कि वो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेबल होता है, और उसका उसके अलावा कोई फायदा नहीं होता. हाँ, अगर मेडिकल स्टूडेंट्स लम्स के अंदर आके SSC में जाना चाह रहे हैं, BS बायोलॉजी करना चाह रहे हैं या कोई रिलेटेड फील्ड, तो तब आपको ये फायदा हो सकता है कि आप लोग पहले LCAT दो और उसके बाद आप लोग SSC टेस्ट दो, तो ये फायदा है.
सही है। सैट के टोटल एक्सपेंस कितने होंगे? हमारे टाइम पे कोई 20-25 हजार थे, लेकिन अब मैंने सुना है कि कोई सही है। Where do we have to pay for Kickstarter? ये आपको मेरे ख्याल में उमाइमा बता सकती हैं बेहतर, या कुछ लोग। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ये होता है कि 2 तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है लम्स। एक होती है मेरिट स्कॉलरशिप और एक होती है फाइनेंशियल एड। सही है। फाइनेंशियल एड के लिए आपको बेसिक लम्स के अंदर मेरिट में आना ही होता है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि आपकी नीड क्या है, आप लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके टोटल एसेट्स क्या हैं, ऑल दैट। सही है। बिलोंग करने का इतना नहीं देखा जाता। उसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा उसका हाई होता है। वो अपने एप्लीकेंट्स में से देखते हैं कि टॉप एप्लीकेंट्स कौन है और उनको लम्स खुद रीच आउट कर लेते हैं। तो आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। सही है। मैम दिस सेशन इज वेरी एक्सपेंसिव मैम, कैन वी गेट स्कॉलरशिप्स फॉर अब्रोड ऑन? यस, आपको बाहर जाना है तो ज़्यादातर सैट ही रिक्वायर्ड होता है। हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर एल कैट? एल कैट के मार्क्स लम्स रिलीज नहीं करती है, तो बस ट्राई टू डू योर बेस्ट आई वुड से। व्हाट आर द यूज फॉर प्रिपरेशन? यार प्रिपरेशन के लिए एक मैं लिंक शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं अभी शेयर कर देती हूँ इस चैट में। मेरे पास कुछ लिंक्स पड़े हुए थे, तो आप लोग उन बुक्स से कर लो। और बाकी जब आप लोग लम्स ज्वाइन करोगे तो तब भी आप लोगों को सॉरी, जब आप लोग किकस्टार्ट ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल में आपके टीचर्स वगैरह शेयर करेंगे काफ़ी रिसोर्सेज। लेकिन कॉलेज पांडा या एरिका समथिंग में उनकी बुक्स काफ़ी। Okay, Rida, you can share the मैंने एक link लिंक so शेयर the किया है, student इससे अच्छी can. resources चाहिए तो आप लोग ले सकते You can share the link. चैट का link। ठीक है, जी जी, मैंने ठीक चैट है, में मुझे शेयर कर प्राइवेट दिया में भी कर दें ताकि अगर उसके इसके बाद कोई बच्चा मेरे पास आता है सही तो है। मैं उसको कर सकूं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को क्या कुछ है? मैं आपके साथ कर देती हूँ डीएम में। सही है। हाँ, मेरे साथ कर दें फिर। All the students are already in the SAT and सही LCAT है। webinar वाले मैंने group. आपको I'll share डीएम the में भी link over भेज दिया there. है लिंक। उसके ठीक है, अलावा perfect. क्या ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये उमाइमा बता सकती है। Yes, कैन वी अप्लाई फॉर this अब्रॉड ऑन द session बेसिस is ऑफ being एलकैट recorded. और डू वी हैव टू टेक सैट? अच्छा, एलकैट मैंने आपको बताया लम्स का टेस्ट है, तो इसके बेसिस पे सॉरी अच्छा, तो एलकैट की बेसिस पे आप लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हो, सैट की बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। सही है। जिन यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड है, व्हाट शुड बी सैट मार्क्स दैट लम्स काउंट इन full right scholarship and even half with good extra curricular background। अच्छा यार देखो, सैट में ना ऑनेस्टली ये नहीं कहा जा सकता, ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है आपकी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइक आपके बाकी एफएससी वगैरह में या आपके एओ लेवल्स में कितने मार्क्स हैं। तो लेकिन कुछ स्कोर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्कोर्स होते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं। लेकिन हम लम्स के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते, लम्स थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है, तो लम्स के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि यू नो ये वाला स्कोर बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। लेकिन अच्छे स्कोर यूजुअली 1600 में से सेट होता है, तो 1500 अबव बहुत ही अच्छा होता है, 1400 अबव भी अच्छा होता है, 1300 अबव इज वो भी अच्छा है। मेरा अपना 1260 से कम था, लेकिन मेरा एसडीएसबी में हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका 1500 प्लस भी होगा, उन्हें भी अक्सर लम्स रिजेक्ट कर देती है। सही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही जिसे फेल कंसीडर किया जाता है ना, जिसके ऊपर आपको मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप लोग दोबारा दे सकते हो सैट, या मेरे दोस्तों ने दोबारा दिया था स्कोर के बाद, तो लेट से आपका थाउजेंड्स में आ रहा है ना, तो आप लोग तब दोबारा दे दो। या 1100 भी इतना कुछ खास स्कोर नहीं है, मतलब हो जाता है इस पे। मैंने इवन एसडीएस में लोग देखे हैं। लेकिन अगर आप लोग जस्ट टू स्टे ऑन द सेफ साइड, तो आई वुड से कि 1200 से नीचे नीचे अच्छा स्कोर इतना नहीं होता, और ऊपर ऊपर। लेकिन उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में अप्लाई करो। लेट से आप लोग सबसे ज्यादा जो मेरिट है लम्स में वो है एसटीएसबी का, उसके बाद है एसएससी में कोई सीएस, हाँ एसएससी का है, फिर आता है एचएसएस और फिर आता है लॉ। तो इसके अंदर अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि लेट से आपके स्कोर्स बहुत ही खराब हो गए हैं, तो आप लोग अपनी सेकंड प्रेफरेंस लॉ को दे दें या
एचएसएस को दे दें। उससे फायदा ये होगा कि उनका मेरिट कम होता है तो लम्स आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएस एसएससी में ना भी मिला तो आपको एचएसएस या लॉ में मिल जाएगा, अगर आपने लम्स आना ही आना। अच्छा, कोटे की सीट्स होती है, मेरा नहीं ख्याल, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का कोटे की सीट्स होती है नहीं। इफ अवर एफएससी मार्क्स आर लो बट अवर सैट स्कोर्स आर हाई, विल वी बी सिलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटी? ऑनेस्टली इसका आपको यूनिवर्सिटी बता सकती है, क्योंकि वैसे तो दोनों चीजें काउंट होती हैं। आई वुड से कि अगर आपने कोई चीज बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है तो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर काम करो, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट इज समथिंग जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और लम्ब जिसको काफी वैल्यू करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कर लो, पर्सनल स्टेटमेंट में करो, अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस सोशल वर्क कर लो, इन चीजों में यूनिवर्सिटीज में काफी वैल्यू होती है। सही है। या फिर आप लोग अपने कुछ सर्टिफिकेट्स ले लो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट, सेकेंडरी होती हैं। कैन वी अटेंड दिस सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट? किकस्टार्ट के सेशन तो यस आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। आप लोग दानिश से बात कर लो, उसका क्राइटेरिया मेरे ख्याल में फाइनेंशियल एड वगैरह का ही है। सही है। और उसके बाद व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन इन सैट? मैंने आप लोगों को अभी कुछ रिसोर्सेज शेयर किए हैं, तो मैं दोबारा लिंक अटैच कर रही हूँ चैट में ही। तो इसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने खुद के प्लान से भी की थी। और उसके अलावा बेस्ट रिसोर्स जो है वुड से खान अकेडमी भी बहुत अच्छा रिसोर्स है ऑनलाइन, जो कि आपको सैट प्रिपरेशन में हेल्प दे सकता है। सही है। व्हाट अबाउट द एसेज, वुड किकस्टार्ट हेल्प स्टूडेंट्स थ्रू दैट? हमारे टाइम पे तो किकस्टार्ट ने किया था, अब मेरे ख्याल में मायरा बता सकती है, वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। मायरा, कैन यू प्लीज हेल्प? ठीक है Rida, now Myra can take over. If you want to stay in the meeting you can. Thank you so much for joining. बाकी मैं आपका सैट जो और लिंक एलकैट है मेरे that ख्याल would में be आप really दे सकते हो helpful. साथ, लेकिन क्यों दोगे आप? आप सैट दे रहे हो तो ऑफ कोर्स लगता है कि मैं Am I audible? Okay, Yes, you are. okay, great. So I'll answer some of the queries. Can you drop your text in the chat box? जो भी आपके questions है, queries है. अगर आप अभी I'd मुझे like the students के आप पहले इंग्लिश के बारे में क्वेरीज पूछ लें, उसके बाद we'll go with मैथ्स या कोई जनरल क्वेरीज हैं जो मायरा भी आंसर कर देती है। जो मैथ रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेरीज है वो फिर अली कैन टेक ओवर एंड आंसर दोस। yeah, okay. So English specific questions. I'm waiting for those. Okay, so Shmail, you have the question कि personal statement कैसे strong कर सकते हैं आप? So English से related है, थोड़ा सा मैं इसलिए बता देती हूँ. So personal statement के लिए what matters the most is that you make it error free and also you have good ideas. Like I wrote my personal statement, so 2 questions थे and I wrote good ideas. ठीक है, तो आपके पास अच्छे आइडियाज होने चाहिए और आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखकर उसको सेंड नहीं कर देनी। यू हैव टू प्रूफ रीड। हो सकता है तो आप अपने टीचर से, अपने किसी भी लाइक फ्रेंड से जो इस बैकग्राउंड से है इंग्लिश के, तो उनसे रीचेक करवाएं एंड मेक इट एरर फ्री। ओके। Essay part for SAT. So there is no essay now, Minahil. So there is no essay here on SAT or LCAT. So don't need to worry about that. Roman, you are asking about resources for prep. So for English, we will be sharing the resources like जो मैं आपको classes में करवाऊंगी 7 sessions में. That's enough. और उसके साथ जो book होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. So like we will be doing Erica's book and homeworks will be shared by session. ठीक है? Yeah, so college partner is best for maths, I would say, not for English, but you can practice from that as well. How can we solve paragraph in short time? So Divan, so for digital SAT you have small paragraphs, but on LCAT you have the mix of both. LCAT में आपके पास
डिजिटल एसईटी और ओल्ड एसईटी दोनों का पैटर्न आएगा। सो किस तरह से आप कर सकते हैं सॉल्व टाइम कंस्ट्रेंट में प्रैक्टिस से। सो आई एनकरेज स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, सो टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है। Yes, Erica's book is enough for English. Okay, so Akhtar, you were asking what should I read for SAT English preparation books magazine. So I encourage students that you read articles. Okay, so don't read novels. Like if you have the habit of reading novels, then it's good. You can continue. But सिर्फ for सिर्फ like novels read करना for the preparation, I would say कि don't go for that. Instead of this, try to read articles from the net. आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है वो आप पढ़ें, मगर पढ़ के ये नहीं करना कि लाइक जस्ट थ्रो इट अवे कि लाइक बस पढ़ लिया, नहीं। सो जब आप पढ़ें, सो ट्राई टू सी कि उसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको साथ साथ वोकेबलरी भी बिल्ड कर रहे होंगे। एंड वंस यू रीड द आर्टिकल, उसके बाद आप सोचें कि लाइक व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में। सो ट्राई टू थिंक इट लाइक दैट। फिर ही आपको समझ आएगी कि इंग्लिश में असल में किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, रीडिंग हैबिट बनेगी, और फिर आपको सैट में और एलकैट में ईजी होगी इंग्लिश रीड करना। अच्छा, सो मदेश कुमार, यू आर आस्किंग अबाउट द वोकेबलरी। सो मैंने ये शेयर भी की थी इन द एनओपी सेशन। सो देयर इज अ प्रेप स्कॉलर vocabulary list, so try to learn words from that। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर मैं आपके साथ एक और रिसोर्स शेयर करूंगी वंस यूर इन द सेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपने आई थिंक नेक्स्ट ईयर देना है फेब्रुअरी में एलकैट, सो तब तक भी टाइम है। सैट भी अगर आपने देना है जनवरी तक या दिसंबर में, फिर भी टाइम है, तो वो भी आप करें। ऑनलाइन प्रैक्टिस रिसोर्स फॉर इंग्लिश दलित, सो यू आर आस्किंग अबाउट दैट। So do from Khan Academy, that's it. Khan Academy is a very good resource because I heard कि LCAT में भी कुछ questions आते हैं, और उसके अलावा आपके जो like SAT का actual test है digital, उसमें भी काफ़ी questions like उसी pattern पे आते हैं, so try to do that। ठीक है, उसमें 3 levels होते हैं, easy, medium and hard, so try to go over that। So college board past papers enough for the preparation? Yes, enough। Digital और old SAT दोनों के past papers करें। Okay, I think I'm done with the English one। और मैथ्स की अगर क्वेरीज हैं तो आप बता दें, सो सर अली विल टेल यू। जी आप Myra, I लोगों के think we still have some questions for English. हम्म, फॉर इंग्लिश आई थिंक दे हैव वेरी स्पेसिफिक वन, जो कि लाइक कंटेंट में जब हम करेंगे ना, बिटवीन द लाइंस, मेन आइडिया, वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं। सो आई विल बी going over those strategies in the session, but if you want me to go over them now, so I can go over them now as well। Obviously we can't go over Yeah, it in detail, but अगर general। देख लो, अगर आप overview देना चाहो या कुछ इस तरह। Okay, so yeah, so there is one question about vocabulary, कैसे याद करें। अब कैसे याद करने का तो मैं नहीं बता सकती कैसे करें, बट जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हर रोज 5 वर्ड्स आप पिक करें, ठीक है, फ्रॉम द vocabulary लिस्ट, एंड ट्राई टू मेमोराइज। और उसके बाद जो सेंटेंसेस हैं उसको भी याद रखें कि लाइक किस तरह से सेंटेंसेस में यूज हो रहा है। एज इट इज सेंटेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू थिंक अबाउट योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, और इसके अलावा या वेट, ठीक है, सो स्ट्रैटेजीज मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने टैकल करना है लॉन्ग पैसेजेस। सो फॉर लॉन्ग पैसेजेस आई विल encourage you guys to first read the questions, सही है, और फिर आपने पैसेज पर जाना है एंड देन ट्राई टू फाइंड द मेन आइडियाज। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जब पेपर
हमारे पास आता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं रीड करना कि लाइक वी नो एवरीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द क्वेश्चन. आई होप दैट यू गाइज रिमेंबर, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एनओपी के हैं, तो उनको पता होगा कि हमने आपको स्ट्रैटेजीज करवाई थी 10 टिप्स. सो अगर वो आपको याद है तो आपने वही अप्लाई यहाँ पर भी करनी है. ठीक है, उसके अलावा हम आपको साथ साथ सेशन में भी कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, और साथ जो मटेरियल है वो हम कवर करेंगे. ओके. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने यही करना है कि लाइक जो भी हम पहले तो पढ़ रहे हैं चीज़ें, कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए. जब आपका 100% क्लियर हो जाएगा तो फिर आप जब पास पेपर्स करेंगे तो फर्स्ट रीच द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है कि आपने ट्राई करना है कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो. सो अगर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने एक्यूरेसी रीच कर लिया है. सो व्हेन यू रीच 100% एक्यूरेसी, देन मूव ऑन टू टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. सो स्टार्टिंग में टाइम कंस्ट्रेंट के लिए वरी नहीं करना, बट इन द एंड, और जितना भी टाइम होगा, फॉर एग्जांपल अगर 60 मिनट्स है तो पास्ट पेपर्स में आपने ये करना है कि 60 मिनट्स को डिवाइड कर लें 5 पैसेजेस में, और फिर डू इन दैट वे. ज़ैनब, यू आर सेइंग वोकेबलरी कौन सी बुक से करें? सो देयर इज़ अ प्रेप स्कॉलर वोकेबलरी लिस्ट, सो वहाँ से करें. और अगर आपको एनओपी पे बुक मिली थी तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप. ठीक है, वो भी करें और साथ प्रेप स्कॉलर भी. मैम, हमें एक दिन में कितना टाइम एलकैट प्रिपरेशन में लगाना चाहिए? कितना टाइम लगाना चाहिए एलकैट के लिए? सो एलकैट बिकॉज मार्च में या फरवरी में, तो आप अगर हर रोज अभी 1 to 2 hours भी दे रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, अगर 1 to 2 hours दे रहे हैं दैट्स इनफ. जब हम क्लासेस करवा रहे होंगे, आपको लाइक बता रहे होंगे कि ये होमवर्क करना है, तो उसमें हो सकता है आपको 2 hours से ज़्यादा लग गए, बट अगेन वो आपकी 1 week में एक क्लास होगी. सो ट्राई टू डू द होमवर्क एज वेल. ठीक है, तो होमवर्क करें और साथ वोकेबलरी करें और कुछ ना कुछ आप पढ़ते जाएं, लाइक आर्टिकल्स पढ़ें, एंड डू खान अकेडमी. दैट्स इट. अरीशा, यू आर सेइंग ये सेशन लेने से इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी? यस, आई एम 100% श्योर दैट हो जाएगी, बट अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन एज वेल, बिकॉज हम क्या करते हैं कि साथ साथ आपका जो होमवर्क है वो भी, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अटेंडेंस आपकी मार्क हो रही है, तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो बिलीव मी हो जाएगा. बट अगर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, फिर होमवर्क्स भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है. तो सी, इफ यू आर सेइंग आइल्स प्रिपरेशन क्या हेल्प करती है सैट टेस्ट में? सो आइल्स इज डिफरेंट. लाइक सैट अगर आप अच्छा कर रहे हैं, उसमें प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो फिर आइल्स में हेल्प होती है. बिकॉज मैंने थोड़ा सा ये पढ़ा है इसके बारे में आइल्स का, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो रहा है. लाइक सैट बिकॉज मेरा अच्छा था, तो आइल्स मेरे लिए थोड़ा ईजी है. लेकिन अगर आप आइल्स की पहले करें सैट के लिए, फिर थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि सैट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है. Are there any other questions? ओके, सो न्यूज़पेपर मैगजीन कौन सी रीड करनी चाहिए? डॉन, लव कुमार ने बताया डॉन करनी चाहिए. दैट्स अ गुड सोर्स. बीबीसी की न्यूज़ पढ़ लें, तो थोड़ा सा अपने आपको रीडिंग से एक्वेंट करें. आई वुड से लाइक आपकी रीडिंग हैबिट बने. अरीशा, यू आर सेइंग कि इंग्लिश में अगर 0 है तो 7 weeks में हो जाएगा. सो अगेन आई विल से कि 7 weeks चाहिए, बट आपको हम डायरेक्शन भी देंगे, बिकॉज 7 weeks के बाद आपके पास काफ़ी टाइम है फॉर द एलकैट और एसटी. सो पास पेपर्स करें आप और साथ रिवाइज करें. दैट्स इट. प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेंट पे अगर आपकी हो जाती है
ग्रिप हो जाती है तो पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ईजी होंगे फिर। ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑन द कंटेंट। 7 वीक्स में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का, लाइक मैं पढ़ाऊंगी रीडिंग राइटिंग, सो जितनी भी क्वेरीज होती हैं आई विल बी आंसरिंग देम इन द सेशन। ठीक है, उसके बाद भी अगर ग्रुप में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर एंड वी कैन आंसर दम। Old SAT paper resources. So Daniel, you're asking. So there is a website, College Board. So College Board पर आपको मिल जाएंगे पास पेपर्स। अदरवाइज अगर कॉलेज बोर्ड नहीं तो आपको रेडिट पे भी मिल जाता है। रेडिट, REDDID, ये हम आपको बाद में भी बता सकते हैं, बट यूज दैट। सही है। मदेश, यू आर आस्किंग के लाइक अगर हम रीड करें वोकेबलरी इम्प्रूव और रीडिंग लेवल इम्प्रूव होगा। यस, डेफिनेटली होगा, लेकिन सिर्फ आपने आर्टिकल्स पढ़ के ये नहीं सोचना कि हो जाएगा सब कुछ। आपने कंटेंट भी रीड करना है सैट का जो हम स्पेसिफिकली करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने ओन पर करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, आप खुद भी कर सकते हैं, बट अगेन यू शुड बी 100% क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी रीडिंग पर राइटिंग पे ग्रिप है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन राइटिंग, लाइक उसमें आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, रिडंडेंसी, पैरेललिज्म, कॉमा स्प्लाइस, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो यस, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। All right, guys, let's move on to questions related to math or any other questions. So over to Ali. Please write your questions in the chat box so we can, you know, address them. Okay, thank you so much, everyone. Thank जी, you, अगर Myra. आप लोगों के मैथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या जनरल क्वेश्चन भी हो तो यार कोई मसला नहीं है। यार ग्राफ्स के अंदर इशू आता है तो वो कैसे सॉल्व करें? ओके, देखिए ये स्ट्रेटेजी तो हम इंशाल्लाह कोर्स में भी सीखेंगे जैसे जैसे हम, क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश होती है कि ग्राफ्स वगैरह को ज़्यादा डिटेल में बताया जाए, क्योंकि आई डोंट नो, लेकिन मैंने हमेशा स्टूडेंट्स में ये पाया है कि ग्राफ के रिलेटेड बड़ा डर रहता है। बट आई वुड से कि देखें, अगर आप लोगों को इंटरसेप्ट्स का आइडिया है कि बस एक छोटी सी बात, समरी काइंड ऑफ ग्राफ्स की समरी ये है, अगर आपको इंटरसेप्ट्स का आइडिया है कि इंटरसेप्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स, तो आप ग्राफ को जो एसएटी के ग्राफ्स हैं उनको बड़े इजीली हैंडल कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट की गेम होती है। वी विल डू इन द सेशंस। सर मैथ के में कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला यूज करना है या सेट में? यार वो तो बड़ा इजी सीन है कि अ, यानी कोई भी डिफरेंट फार्मूला, एक ही चीज के दो फार्मूले नहीं है ऐसे टी के अंदर ज्यादातर। यानी अगर सर्कल है तो सर्कल का ज्यादा से ज्यादा एरिया आ जाएगा, या सेक्टर का एरिया आ जाएगा। वो बहुत इजी सीन है, यानी मुझे नहीं लगता कि फार्मूला रिलेटेड कोई इतना को खास मुश्किल होती है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो सकती है। कैन वी टेक दिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए आप इंशाल्लाह मेरे ख्याल ये हमारा ये मैमा आप लोगों को कोई फॉर्म वगैरह शेयर करेंगे, और आप लोग फॉर्म फिल कर लेना जब फाइनेंशियल एड के लिए, तो इंशाल्लाह वी विल सी। सर व्हाट इज डेस्मोस? डेस्मोस बेसिकली एक ग्राफिंग टूल है जो कि एससीटी के अंदर होता है। लेकिन मेरी कोशिश जो होती है वो यही होती है कि आप लोगों को ग्राफ वैसे ही सिखा देना होता है मैंने, कि ग्राफ किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है, किस तरह का आपको ग्राफ बनेगा, अगर ये इक्वेशन है तो इसकी किस तरह से ग्राफ होगा, इसके क्या। और अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो बेसिकली हर ग्राफ की मेरी नज़र में जान है। ठीक है, आपको वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो डेस्मोस, हाँ डेस्मोस का यानी आप वहाँ पर इक्वेशन इंसर्ट करो, आप देख सकते हो कि अच्छा क्या इस इक्वेशन का क्या ग्राफ बनेगा। लेकिन मैं ग्राफिंग टूल्स वगैरह बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। हाँ यानी लास्ट ऑप के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका उसी हिसाब से ही यार पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है।
कैलकुलेटर और ग्राफिंग कैलकुलेटर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं बेसिकली ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करता। और मैं जो सेशन के अंदर मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को मैनुअली कैलकुलेशन के ऊपर बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कोशिश करता हूँ मैं कि आप लोगों को ना, कि आप लोग कैलकुलेटर से जितना हो सके दूर रहो। उसकी वजह यह है कि जब आप आपके पास यानी यानी आप लोगों के साथ मेरे तकरीबन 8 इंग्लिश से ज़्यादा ही सेशन होते हैं मोस्टली मेरे। 8 से 9 या कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। तो इन 9 से 10 सेशंस के अंदर मेरा यही मकसद होता है कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े। बेसिकली कैलकुलेटर्स डिज़ाइन इसलिए हुए होते हैं कि आप लोगों को स्लो किया जाए। आई पर्सनली फील दिस थिंग। अब बेहतर है कि आप खुद, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती है एसएटी और एलकेट के अंदर दोनों की। सर अगर मैथ की स्टेट समझ ना आ रही है तो क्या टिप्स? यार देखो, अभी मैम मायरा भी यही बता रही थी, ठीक है, कि अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आती ना, तो आप उसे दोबारा से गौर से पढ़ो। पहले तो यानी आप स्टेटमेंट का तो हक अदा करें ना, कि अच्छा स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आती ना, मेरी कोशिश ये होती थी, अच्छा मैंने जब ऐसे टेप ना दिया था तो मेरी कोशिश ये होती थी, जो बल्कि बल्कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते थे वो मैं एंड में ही करता होता था। ठीक है, मैं पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेता था, यानी यही। और मेरी आज भी यही स्ट्रेटेजी चलती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वी विल डू, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। इसके ऊपर 2-3 चैप्टर्स हम करेंगे कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करना है। और आई एम काइंड ऑफ फुल के आपको फिर बाद में नज़र आने लग जाएगा कि किस तरह से आपने जल्दी जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर, 15 सेकेंड के अंदर यूजफुल चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके आपने आंसर दे देना है। ये हम देखेंगे। मैट्रिक मैथ यू हैव फॉरगॉटन, इज इट नेसेसरी टू? यार देखिए, आपको थोड़ा बहुत मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक की मैथ वगैरह के ऊपर थोड़ी सी तो गिरफ्त होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह की होती है। नहीं भी पता तो वो तो हम तो, मैंने तो दोबारा से बतानी ही होती है। तो इतना कोई मसला नहीं है। अगर आपकी मैथ की बेसिस थोड़ी सी कमज़ोर है, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। लेकिन कम से कम ये है कि आप जब भी कोशिश करें कि आपने सेशन पढ़ना है, तो आप कम से कम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत बेसिस को दोहरा लें। ठीक है पहले। फंक्शंस, यार फंक्शंस मुझे लगता है इतने मुश्किल नहीं होते। ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं उनके अंदर पूछा क्या जाता है, उनकी आपने आउटपुट वैल्यू बतानी होती है, या आप उन्हें उन्हें बताना होता है कि इसकी रूट क्या बनती है, यानी अगेन इंटरसेप्ट्स। ठीक है, या तो आपने इंटरसेप्ट्स बताने होते हैं कि इसका एक्स या वाई इंटरसेप्ट क्या है, इन बेसिकली उसकी समरी ये है। ठीक है, या फिर आपने फंक्शंस के बारे में ये बताना था, ये फंक्शन किस तरह का नजर आएगा, वो भी आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के बता सकते हो। या फिर ज़्यादातर वो आपसे वैल्यू पूछ लेगा। आपके पास अगर लीनियर फंक्शन आ रहा है, तो मे भी हाँ वो आपसे थोड़ा बहुत यानी लाइन के हिसाब से या फिर लीनियर फंक्शन के हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जब आएगा उसके बारे में भी वो आपसे हद मार के वो आपसे सिर्फ इंटरसेप्ट्स के बारे में ही पूछ रहा होगा, या फिर उसके छोटे मोटे ग्राफ के बारे में पूछ रहा होगा, जो हमने पैराबोला वगैरह में देखेंगे। अगर वो क्यूबिक फंक्शंस आ रहे हैं या फिर फोर्थ लेवल फंक्शंस आ रहे हैं, उसके अंदर उसने आपसे इंटरसेप्ट या फिर वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना। मैथ इज टू इजी। हाँ यार, अच्छी बात है, अगर आपको मैथ इजी लगती है तो खुश हो जाओ यार, बड़ी मजे की बात है। सर प्रॉब्लम इज ग्राफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली ये है कि आप लोगों को कोशिश ऐसे कहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेसिकली उसका, बस ये है कि आप हमेशा पैराबोला बनेगा। ठीक है, ग्राफ उसका वो सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। इट डिपेंड्स कि आपके साथ एक्स केयर के साथ कौन सी वेल साइन है, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सर बहुत इशू होता है। देखो, अभी अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, प्रॉपर 2 से 3 चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, हम स्टेटमेंट्स को जल्दी से इंटरप्रेट करना सीखेंगे कि किस तरह से आपने जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से काम की चीज़ किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। यानी फॉर एग्जांपल हम वी डोंट नीड के, अच्छा फॉर एग्जांपल एक अली है, अली वो घर जा रहा है, वी डोंट केयर। उसने बताया कि अच्छा वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो घर जा रहा है नहीं जा रहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी विल सी कि किस तरह से हम
जो यूजफुल चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ज्यादातर कोशिश किया करो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, तो चेक करो कि अच्छा अगर आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ है, मोस्टली ग्राफ वाले क्वेश्चंस के नीचे ही बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं। पहले ये देख लो कि ग्राफ है किस चीज के बारे में, सबसे पहले ये चीज देखो, यानी उसके एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या है। फिर उसके बाद आपको ना ऑटोमेटिक आपका ना माइंड क्योंकि बन चुका होता है कि अच्छा ये ग्राफ ही इस बारे में, तो मोस्टली वो इस चीज के बारे में बता रहा होता है, तो आप अननेसेसरी चीजें ऑटोमेटिक स्किप करने लग जाते हो। सर ये कहा जाता है एलकेट में मैथ डिफिकल्ट होती है, क्या ये सही है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही सुना है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होती, यानी कहते हैं 19-20 का ही फर्क होता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता इतना ज्यादा। यार देखो, आपके लिए ये मैटर, आपने तैयारी करनी है ना, आपके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि मैथ डिफिकल्ट है या आसान है। ठीक है, आपके लिए जो ज्यादा चीज मैटर करती है ना, वो ये करती है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल सी कि अच्छा डिफिकल्ट, मोस्टली मेरा काम, मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाते हैं, आपसे ऑटोमेटिकली आसान भी होते जाएंगे। सर कैलकुलेटर अलाउड है सेट? हाँ, सेट के अंदर दोनों, सेट के अंदर कैलकुलेटर दोनों में अलाउड है। सर इन सेट बुक 4 टाइप्स ऑफ मैथ इंक्लूड ओनली। देखो, चार तरह की मैथ की ही बात होती है, यानी मैथ की बात होती है, एडवांस मैथ आ जाती है, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री ये वाली चीज़ें आ जाती है, फिर उसके बाद आपके पास शेप्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ को बेसिकली डिवाइड इस तरह से किया गया है, लेकिन आई वुड से कि इस तरह से पढ़ने से अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैथ मैथ और एडवांस मैथ अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपस में इंटरलिंक भी है। तो अ, जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारी प्राइमरी जो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को कॉलेज पढ़ना काफ़ी ज़्यादा करवाता हूँ, तो मैं उसके अलावा भी मेरे पास 2 बुक्स होती हैं। ठीक है, एक बुक तो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा और भी शेयर करता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है एक चीज़, एक पूरी बुक से आपको पूरी चीज़ पता चल रही है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज पढ़ने में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और वो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वी विल, हाँ, लेकिन ऐसी बुक यूज करो जिसके अंदर कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स, सॉरी कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चंस अच्छी से की हो, यानी इस बुक के चैप्टर अच्छे बने। शॉर्टकट्स इन मैथ? यार शॉर्टकट्स जो होते हैं ना, देखो मैथ क्योंकि प्रैक्टिस का ही नाम है, तो मैथ के जो शॉर्टकट्स हैं वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। जब तक आपको पास ना एक अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे, देखो, अच्छा एक जो चीज़ मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ और वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप कितने, आप 100 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, लेकिन अगर वो क्वालिटी वाले क्वेश्चन नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप बेशक 10 क्वेश्चन कर लो, लेकिन दे शुड बी क्वालिटी क्वेश्चन, कि आप लोगों का कम से कम दिमाग में जोड़ दे कि अच्छा हाँ ये दीज आर क्वेश्चंस। अगर आप और हाँ, एक और चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो उसके ऊपर ये नहीं है आप 50-50 क्वेश्चन करते रहो, उसका कोई खास फायदा नहीं है। जो आपको नहीं आता उसके ऊपर टाइम लगाओ। ठीक है, ताकि आपको यूनिफॉर्म हो आपकी तैयारी, ये ना हो कि अच्छा आपको ये चीज़ ज़्यादा बहुत अच्छी आती है और वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं आती। ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट्स वो ऐसे ही निकलते हैं, एज रिटन इन। यार शॉर्ट ट्रिक्स का तो यही है, मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक्स ये तो यार आपके प्रैक्टिस से आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, और वी विल डू काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रिक्स, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ा रहे होते हो ना, तो उस टाइम पर आपके पास ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिफरेंट ट्रिक बता दूँ, नहीं, मेरे माइंड में इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल मैं लाइंस के ऊपर अगर आपको बताऊंगा ना, तो लाइंस के बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक अलहदा से बताऊंगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा तो वो अलहदा से होगा, क्योंकि जब पढ़ा रहा था वो बाय मोस्टली वो प्रॉम्प्टली ही उसी टाइम ही आपको पता चल बता दिए जाते हैं, यानी वो ऐसे वैसे जहन में तो मेरे नहीं रहते, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा होता उस टाइम पे मैं आपको जरूर बताता हूँ। विल यू टीच अस टू यूज डेस्मोस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेस्मोस आता, यानी आपके पास एक चीज़ है, टूल है, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस तरह से यूज होता है। फाइनेंशियल एड सर, मैम आपके साथ शेयर कर देंगी। सेट, यार देखो, एलकेट और सेट समझ लो कि ये बहन भाई है, ठीक है, और वो भी जुड़वा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है।
अगर आप सैट की तैयारी करते हो तो आपकी एलकेट की होती है, एलकेट की करते हो सैट की होती है। ठीक है, तो कोई खास फायदा कोई खास फर्क नहीं है। हाँ यानी थोड़ा बहुत आपके जो टॉपिक्स है, देखो टॉपिक्स तो जो सैट के अंदर है और जो एलकेट के अंदर है वो दोनों डिट्टो सेम है। ठीक है, यानी सैट के अंदर अब इमेजिनरी नंबर्स नहीं आते, एलकेट के अंदर मैंने सुना है कि वो अभी भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वो 5 मिनट लगते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आपने 11th 10th में भी किए होते हैं, तो इतना कोई नुकसान नहीं होता। यानी नुकसान कह रहा हूँ, मतलब आपके लिए यानी इतना कोई फर्क नहीं होता। तो और इंग्लिश के केस में भी ऐसे ही है, इंग्लिश भी वही है। अगर आपके पास, मैं आप लोगों को पुराने जो एसएटी के पेपर्स होते थे ना, बहुत पुराने, क्या ये 2016 17 18 वाले, ठीक है, मैं आप लोगों से वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करवाता रहूंगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो ही है। क्वेश्चंस को पूछने का, या फिर उनकी कहते हैं ना कि पहले 20 और 38 का पैक होता था, अब उन्होंने 22 22 का पैक कर दिया, बस ये फर्क है। सर ये कहा जाता है कि एल कैट में मैथ डिफिकल्ट होती है यार, 19 20 का फर्क है, कोई ज्यादा मुश्किल। शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स, यार शॉर्टकट तो उसी टाइम, फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ा रहे थे उसी टाइम ही आता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक को बताया कि अगर आप ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे हो तो इंटरसेप्ट्स आपके दोस्त हैं। ठीक है, आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट को देखो, आपको ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। अलजेब्रा, एडवांस प्रॉब्लम एनालिसिस, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ओनली, प्लीज टेल। इसके बारे में भैया मैं क्या बताऊँ, ये आपने आगे बताया ही, पूछा ही नहीं। आ, सर कहा जाता है एलकेट में, यार ये मैंने बता दिया सर, माइनॉरिटीज। यार अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा था। देखिए, लम्स के अंदर मजे की बात है, आज तक हमें क्राइटेरिया नहीं पता। यानी मैं 2017 में एनओपी में आया था लम्स में, ठीक है, और 2018 से 2022 में मैं पढ़ा हूँ। मैंने कभी नहीं सुना आज तक, यानी जब मुझे अभी, यानी मैं दोबारा, अगर आप लोगों वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप लोग कभी, आप लोगों को मोस्टली, कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने मुझे वैसे लम्स के अंदर देखा होगा, क्योंकि मैं अभी भी लम्स में ही होता हूँ। तो बात क्या कर रहा हूँ मैं, कि जो वी डोंट नो कि माइनॉरिटीज का क्या सीन है। ठीक है, वी डोंट नो, फ्रैंकली नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने अपने आप से ऑब्जर्व की है। मुझे ये है कि फॉर एग्जाम्पल साउथ पंजाब वाले, इंटीरियर सिंध वाले, या फिर इधर वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, लफ्ज उनके लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया बनाता है। जो इस्लामाबाद लाहौर वाले हैं उनके लिए अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी। मेरे साथ ही स्टूडेंट था, ठीक है, वो भी 2018 में मेरे साथ आया, माशाल्लाह वो भी ग्रेजुएट हो गया था। तो उसके एक कितने थे, 1130 मार्क्स थे सेट के अंदर। ही गॉट एडमिटेड इनटू द लम्स, एसएससी में मेरी तरह ही, यानी मैं भी एसएससी में था। तो लेकिन उसके अलावा मुझे याद है कि एनओपी में हमारे साथ एक स्टूडेंट होता था लाहौर का, वो 1410 के साथ वो लम्स के अंदर नहीं आया था। ठीक है, मे भी देर इज सम काइंड ऑफ के उन्होंने देखा था कि अच्छा कुछ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम जो दोनों स्टूडेंट्स थे हम साउथ पंजाब से आ रहे थे, ठीक है, वो लाहौर का था। लम्स यकीनन इस चीज के ऊपर मैटर देखता होता है कि गिवन द अपॉर्चुनिटीज, अगर सेम बच्चा, उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है, तो वो आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा यकीनन लम्स के पास कोई ना कोई कोटा होता होगा, लेकिन वी डोंट। लेकिन हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने पूछा था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ क्या है। आई हैव सीन के बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन माई बैच, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी हानिया, और उनका 1080 सेट था, शी गॉट इट टू द लंग्स, और वो बायो उनका बायो बैकग्राउंड था 1080 के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि आप इतने मार्क्स लाओ और आपका हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। द द थिंग इज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं साथ की जो बात कर रहा था, कि मेरा दोस्त साथ जो बेसिकली 1130 के साथ आया, या हानिया, दे वर बोथ बहुत टॉपर्स एट देयर टाइम। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगर आप लोगों को एज मिल रहा है, तो वो इस वजह से मिल रहा है कि देवर बहुत बहुत टॉपर्स। ठीक है, तो कोई ना कोई वजह होती है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आपकी एप्लीकेशन में होना चाहिए
जो आपको दूसरों से क्या कहते हैं, इनफरादियत देता है, ठीक है, अलग करता है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। आपके ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मैंने एफएससी बैकग्राउंड से देखे, उनके उनके मार्क्स बड़े फिट होते हैं, ठीक है, यानी बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं। कोई मैट्रिक में इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने बड़े अच्छे मार्क्स हैं, यानी 1078, और बोर्ड के अंदर मेरी 2 दफा पोजीशन रही। तो इस तरह से सिलेक्ट होते हैं, यानी आई वुड से माइनॉरिटीज का। लेकिन ये है कि मैंने, मुझे लगता है कि कोई ना कोई है क्राइटेरिया, लेकिन वी डोंट नो। यार अगर आपके कॉलेज जाते हो और कैट मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, तो आई वुड से कि कम से कम हमने जो बुक्स बताई है वहां से तो पढ़ो। देखो, वी कैन जस्ट मोटिवेट यू इन दिस केस, ठीक है, यानी हम यही कह सकते हैं कि यार पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना कि अपने साथ, यानी मैं ज्यादातर मोटिवेशन बच्चों को पता क्या देता हूँ, देखो अगर लम्स में जा रहे हो ना, ठीक है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लम्स में आ रहे हो और उसके लिए मोटिवेशन अगर चाहिए, ठीक है, वो ये है कि देखो आपको एक अगर आप फाइनेंशियल एड पे या एनओपी स्कॉलर बन जाते हो ना, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 60 से 70 लाख की डिग्री फ्री में कर सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा आप मार्केट में जाते हो तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब्स लम्स के स्टूडेंट्स को मिलती हैं, ठीक है। तो कम से कम ये मोटिवेशन रख के कम से कम अपने लिए वक्त निकाल लेना, बस यही मैं मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, यानी लम्स के अलावा भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन अगर आपका एम है तो हाँ। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट देर इज रिलीफ इन मैथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास 2 केसेस हैं जो बायो के स्टूडेंट्स थे दोनों, एक लड़का एक लड़की। दे गॉट समहाउ रिलीफ, थोड़ा बहुत उन्हें रिलीफ होता है, लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि मैथ जो है वो ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन यानी उस टाइप की मैथ नहीं है। ये जनरल मैथ है जो आप मेरे ख्याल 9th 10th में भी पढ़ते हो, यानी सेट सिर्फ उन्हीं की एक्सटेंशन है, ठीक है। हाँ, यानी लम्स बेसिकली आपका बैकग्राउंड देखता है, हाँ, जो मैंने आपको ही बता दिया कि हाँ भी मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि मैं साउथ पंजाब कोटा की वजह से शायद सेलेक्ट, आई पर्सनली फील हाउ टू कवर सेकेंड ईयर इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। यार पढ़ लो, ये कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर, यानी सोच लो, अच्छा, ये सोचो कि अच्छा देखो आज मैं सेकेंड ईयर, देखो अगर कोई कहता है ना आपको कि सेकेंड ईयर के बाद जिंदगी आसान है, मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता, ठीक है। मुश्किल ही होती है, आगे से आगे क्लासेस मुश्किल ही होती जाती है, ठीक है, आगे आपने जॉब लाइफ में भी जाना है ये वो। लेकिन आई वुड से कि मेहनत पूरी जिंदगी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी अभी जो मेहनत है ना, जो एफएससी की मेहनत है, वो आपको समझ लो कि फॉर एग्जांपल वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी आपको वो लोग क्यों कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए वो बहुत मैटर करती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, उस यूनिवर्सिटी के का टैग लेके ही आप जॉब लेने चाहते हो, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अच्छे नंबर चाहिए, और तो कोशिश कर लो सेकेंड ईयर किस तरह से। बस ये है कि कोशिश करना कि सही से पढ़ लेना, यानी ट्राई टू डू। अगर आपको नहीं समझ आती तो कहीं ना कहीं से किसी से पूछ लेना, यानी बेहतर होता है कि किसी से कंसल्ट कर लो अबाउट कॉन्सेप्ट्स, रादर देन कि आप चुप होके बैठे रहो और गलत कॉन्सेप्ट से आपके। सर कैन यू टेल स्टूडेंट्स अबाउट योर टीचिंग बैकग्राउंड। यार मुझे पढ़ाते हैं बहुत साल हो गए हैं, यानी मेरे 2 3 साल से मैं ई कैट पढ़ा रहा था, एनईटी यानी नेस्ट का जो टेस्ट होते हैं वो पढ़ाता रहा हूँ मैं। उसके अलावा आई वाज ई कैट टॉपर इन पंजाब टू, ठीक है। तो इस वजह से मैं किप्स के साथ काम करता रहा हूँ काफी ज्यादा, यानी मैं बेसिकली 2018 के अंदर जो ई कैट हुआ था उसके अंदर मैं पंजाब में दूसरे नंबर पे था। तो उसके अलावा मैंने लम्स के अंदर भी, यानी मैं एल कैट भी पढ़ा रहा हूँ, सेट के भी बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ, आई टी ओ लेवल्स एस टी जी आर ई पता नहीं क्या क्या मैं पढ़ाता रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी, लेकिन ये बड़े साल हो गए मुझे। क्लासेस एवरी वीकेंड होगी जी, बिल्कुल। हाँ, बेसिक मैथ का लिए है, फिर आप पता नहीं क्या कह रहे हैं आप सर, ये भी हो गया। जी जी, आप रऊफ आप पूछ सकते हो यार क्वेश्चंस। इंग्लिश इज हार्ड फॉर मी, यार मेरे लिए भी मुश्किल थी। आप शुक्र करो आपको मैं मायरा जैसे टीचर मिल रहे हैं जो कि आपको इंग्लिश में गाइड कर देते हैं।
अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिले थे, तो मैं आपको सही कह सकता हूँ कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। ठीक है, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मैं मायरा। सर एक क्वेश्चन देखते ही समझ नहीं आता यार। प्रैक्टिस, अगर आपने क्वेश्चन देख के ही आंसर को प्रिडिक्ट करना है ना, तो इसके लिए प्रैक्टिस है, और क्वालिटी प्रैक्टिस है। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन के अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कोई फायदा नहीं होगा। यार अगर आपका खान एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखने का मन करता है, आप देखो देखो, नॉलेज की कोई वो तो नहीं होती कि आप यानी कोई मसला नहीं है, यानी आप वहां से देखो। सर एल कैट मैथ कंटेंट सेम सेम है सेट, मैथ वही है एल कैट की जो सेट की। आई लाइक इंग्लिश बट इट इज हार्ड। देखो अच्छी बात है, अगर आपको मुश्किल लगती है और आपको शौक है तो इंग्लिश पढ़ो यार, मैम से सीखो कुछ। सर एल कैट में कैलकुलेटर अलाउड है? नहीं, एल कैट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यार आपके पास बुक्स है या नहीं? अली, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जी 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 जी, पूछो कि पूछो पूछो। स्टूडेंट्स को क्योंकि मैं मोटिवेशन मैं देंगे। मैं ट्रैक नहीं रख पा रहा बिल्कुल, मेरे पास हाँ 49 एक, न्यू मैसेजेस है, मुझे नहीं ट्रैक आ रहा बिल्कुल भी। हाँ जी इट्स जी। फाइन इट्स फाइन, कि इनको मोटिवेशन दें हाउ टू मैनेज सेकेंड ईयर एंड एल कैट साथ साथ। अच्छा देखो, मैं मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, देखो मैं था प्रॉपर किताबी कीड़ा। ठीक है, तो मैं ना बहुत पढ़ता होता था। ठीक है, उसकी मिसाल ये आपको मैंने अभी वो शीट सी दिखाई थी और आप देख सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली मैट्रिक और एफएससी दोनों में मैंने बहुत टॉप किया था। ठीक है, अपने टाइम पर। तो मेरे लिए एल कैट जो था ना, वो इसलिए मैंने वो किस तरह से मैनेज किया था, और मेरे लिए मोटिवेशन क्या थी। मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, मुझे पता था मेरे वालदेन जो यूनिवर्सिटी की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हत्या कि मैंने बेसिकली आज तक एल कैट की और जो ई कैट की मैंने आपको बताया है, मैंने कहीं से भी तैयारी नहीं की। मैंने किसी से जाके पकड़ी है, इल्मी की बुक्स किप्स के नोट्स पकड़े हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने वैसे मजे की बात है ओ ए लेवल्स की भी बुक्स पकड़ी हैं। ठीक है, एंड आई डू यानी हालांकि मैं एफएससी बैकग्राउंड में था, मैंने ओ ए लेवल्स की भी बुक्स पढ़ी हैं, और उनके बेसिकली जो होते हैं एमसीक्यूज वगैरह, उनसे मैंने तैयारी की। द थिंग इज के वो मैंने इस तरह से की है कि जब मेरे पास ब्रेक होती थी, आई न्यू के ब्रेक के अंदर मेरे पास खाली टाइम है, या फिर मेरे पास एक ऐसा लेक्चर है जिसके अंदर कोई टीचर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में ऐसे होता है कि आपके पास ना एक सर्टेन टाइम के बाद फिर स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर वो टेस्ट ही लेना शुरू कर देते हैं, यानी सुबह शाम टेस्ट ही लेते हैं, और उसके बाद वो आप ना बैठ के खाली गप्पे मार रहे हो। तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता होता था। ठीक है, मैं उस टाइम के अंदर वो एल कैट की मैंने ना लम से, आई डोंट नो कि आप लोगों के पास, मेरे पास बेसिकली इंटरनेट नहीं होता था, तो मैंने लम्स वालों को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक ना बुक पब्लिश करवा के दो एल कैट ये सेट के ऊपर। तो उन्होंने मुझे ना अच्छी खासी मोटी बुक एक ना यानी जो कि प्रिंसटन वगैरह के सबके टेस्ट वगैरह की, क्योंकि आई डिडेंट हैड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, अपने एरिया के अंदर, बल्कि मेरे पास ही नहीं थी। ठीक है, तो मैंने वो बुक पब्लिश करवा के रखी होती थी, यानी लम्स वाला ने मुझे दे दी, और मैंने वो अपने बैग में रखी थी। तो मैं जब ब्रेक में फारिग होता था तो वो मैं बुक पढ़ता होता था। ठीक है, आई न्यू कि मुझसे इंग्लिश नहीं होती अच्छे से एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गाइडेंस ले लो, किसी ऐसे बंदे से पूछ लो जो कि ना आपको अच्छे से गाइड कर सके। इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन आई न्यू कि मैं मैथ के अंदर बहुत अच्छा हूँ, आई कैन स्कोर वेल। तो तो मैथ के अंदर मैंने पूरी जान लगाई है, इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा कैसे है, वो ऐसे किया है कि मैं स्कूल के अंदर खाली लेक्चर होता था या फिर ब्रेक होती थी, मैं अपनी किताब खोल के बैठ के ब्रेक के अंदर पढ़ा। ठीक है, ये मोटिवेशन है। और मोटिवेशन क्या है कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं लम्स के अंदर नहीं जाता, तो आई नो कि मेरे वालदेन कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकते। यू शुड हैव सर्टन एम्स, या आपके पास कुछ ना कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए जो आपको ड्राइव करे।
अगर आपके पास ये है ना कि अच्छा यार आज नहीं तो चलो मैं कहीं और चला जाऊंगा, ये मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, ये कम से कम ऐसे अपने लिए, यानी आप इस तरह से मोटिवेशन रख लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन मुझे खुश देखें। ठीक है, मैं अपने वालिदैन को खुश देखूँ। ठीक है, और मैं एक अच्छी जगह पे जाके वालिदैन को पढ़ूँ जाऊँ तो कहूँ कि अच्छा जी मेरे वालिदैन भी बड़े फख्र से कहेंगे मेरे बेटा देखो वहाँ पे पढ़, मेरा जब बेटा या बेटी वहाँ पे पढ़ता है। ठीक है, तो मेरे लिए बड़े खुशी की बात होती थी कि जब मेरे घर वाले मुझे, जब मेरे घर वाले पूरे इलाके में बताते थे क्योंकि मेरे इलाके से कभी कोई लम्स में नहीं आया। ठीक है, कि अच्छा है मुंडा लम्स से पढ़ता है। ठीक है, बस ये सोचो कि उस खुशी को पाने के लिए आपके पास क्या मोटिवेशन हो सकती है। ठीक है, अपने वालिदैन का अपने सर फख्र से बुलंद करना है। तो ये आप चीज़ें छोटी छोटी याद रखो आपके पास, अगर आपने कुछ अचीव करना है ना, यू शुड हैव समथिंग जो करना आपको मोटिवेट रोज करे। मेरे पास थी कि मैं चाहता था अपने वालिदैन को मैं सुख दूँ। ठीक है, और मैं एक अच्छी जगह पे पढ़ के जाऊँ अपने बलबूते पर, एंड आई डिड दिस थिंग। ठीक है, आपके मुझे पता है वी आल जब एनओपी में जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपके मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो विदाउट इंटरनेट कर रहा हूँ यार। ठीक है, मैं 2018 में विदाउट इंटरनेट मैंने सब कुछ किया है। मुझे नहीं पता था कि पोर्टल होता या नहीं है। मेरे मजे की बात ये, मुझे नहीं पता था मेरे लफ्ज में एडमिशन हुआ है। और मेरे घर डायरेक्ट वो लेटर ही आया था। आई डिडंट न्यू कि अच्छा पोर्टल अपडेट होता है। आप ये अंदाजा लगाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो ही नहीं था। तो एक ऐसा स्टूडेंट कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मजे की बात, मैंने एफएससी के भी साथ पढ़ा है। एफएससी में मेरी सेकंड पोजीशन होल्डर हुए। ठीक है, मुल्तान में, यू कैन गो और चेक कर सकते हो। और मैंने ये लम्स के अंदर भी एडमिशन लिया और मैंने ई कैट भी टॉप की। आपके हाथ में है सब कुछ, खुद करो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ी वो ये है कि हमारे पास इंटरनेट है। Students, you guys have internet, so उस वक्त इनके पास इंटरनेट है, but he still like managed to get into the biggest university in Pakistan, right? लम्स का नाम है, हर जगह है। बट हम लोग बुक्स प्रोवाइड करेंगे, जो जो ये बुक्स का नाम ले रहे हैं, ये बुक्स प्रोवाइड होंगी, हम खुद प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो फाइनेंशियल एड का प्रोसेस आप लोग पूछ रहे हैं, वो जो ग्रुप बना हुआ है अभी हमारा वेबिनार का, उसमें जो मैसेज मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो वही नंबर से आप लोग मुझे उसमें प्राइवेटली डीएम कर लें कि यू गाइस वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एड दैट वी विल अप्लाई टू। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो किकस्टार्ट की टीम मांगती है कि हम वेरीफाई कर सकें बच्चा फाइनेंशियल एड डिजर्व करता भी है नहीं करता है। ठीक है, मैं नंबर अपना यहाँ चैट बॉक्स में यहाँ लिख देती हूँ, किकस्टार्ट का बिजनेस नंबर। बाकी मैं बोल भी देती हूँ, इफ़ यू गाइस आर राइटिंग इट, यू गाइस कैन राइट इट। ठीक है, और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी नहीं होगी। रिकॉर्डिंग ग्रुप में ज़रूर अवेलेबल होगी अगर आप लोग ग्रुप में नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी मार्केटिंग ऑल ओवर द फेसबुक की थी, ऑल ओवर द फेसबुक, हर ग्रुप में। तो बहुत से बच्चे हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हुए, तो वो लोग मुझे प्राइवेट पे डीएम कर सकते हैं इस नंबर पे जो मैं लिख रही हूँ चैट बॉक्स पे। Also, a lot ठीक of है, मैं एक students मैसेज ask us कि हम फ्री में नहीं पढ़ाते, सेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है and ये सब। तो द थिंग इज कि किकस्टार्ट वाज एसेंशियली मेड कि हम इसको अफोर्डेबल बना सकें, लेकिन टू मेक इट सस्टेनेबल जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए वी आर ऑफरिंग दैट डिस्काउंट जो हमने सेशन में अनाउंस किया है। क्योंकि वो रिगार्डलेस आप जिस मर्जी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वो वाला डिस्काउंट इज फॉर एवरीवन who has attended this session. However, जो फाइनेंशियल एड वाली चीज है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, वो हमारे पास जो सब लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे और फाइनेंशियल एड की डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि वाकई आप डिजर्विंग हैं फॉर द फाइनेंशियल एड, तो उससे हमारे पास वो क्लियर हो जाएगा। या मैमा, यू वर सेइंग समथिंग? हाँ, आई वाज सेइंग कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव इंटरनेट, कि हम लाइव सेशन देखें। हमारे जो सेशन हैं वो रिकॉर्ड भी होते हैं। हमारा 7 वीक्स का सेशन है सैट और एलकैट का। हमारे क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे, और एवरी फ्राइडे वी हैव अ टेस्ट। एक फ्राइडे मैथ्स का टेस्ट होता है, अगले फ्राइडे इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो हमारे वो सेशन भी रिकॉर्डेड होते हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो संडे को आती हैं ग्रुप पर।
तो जैसे ही आप हमारे साथ इनरोल करते हो तो रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन विल आल्सो बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। तो सेशंस भी अवेलेबल हैं इफ यू गाइस डोंट हैव द नेट। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? There is also a question regarding applying abroad. So I have been to the application process myself, so I think I can guide you guys a little about applying abroad. तो जो बच्चे यहाँ पे हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर हम सैट देते हैं तो क्या हमारे पास सिर्फ लम्स की ऑप्शन होगी। तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि पाकिस्तान में जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आईबीए है और यूनिवर्सिटीज हैं, हबीब यूनिवर्सिटी है, आई थिंक नस्ट ऑफ अलाउज SAT for some programs as well, तो वो सारे SAT accept करती हैं। तो अगर आप SAT देते हो तो it does open up a lot of opportunities for you. As far as applying abroad is concerned, हम US is the biggest वो जो SAT accept करते हैं। US में almost सब universities जो हैं वो SAT accept करती हैं। जिन्होंने optional भी किया हुआ है उनको भी अगर आप SAT score भेजो they do consider it something एक्स्ट्रा इन अ सेंस के मतलब वो आपने एक एफर्ट की हुई है एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा दोज हु आर इन फॉर आईवी लीग्स तो उनके लिए हम स्पेशल सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वी हैव वन सेशन इन पाइपलाइन एज वेल जो कि ये यूएस की सारी यूनिवर्सिटीज को सारी जो है हमारे पास स्कॉलरशिप्स को इसको टारगेट करेगा एंड वी विल बी अनाउंसिंग वेरी सून ऑन आवर पेज। और इसी तरह उसका भी एक वेबिनार हम करवाएंगे। इसी तरह हमारे कुछ alumni हैं, we have one of our alumni Ashfa in Turkey who is studying at the Kadir Has University and she also got the Turkey Barsalari scholarship which is a 120% scholarship. So in scholarships की guidance के लिए भी we'll be arranging webinars, but just to clarify, there are also many other universities in Qatar and in the Middle East that accept SAT as well, और कुछ universities even UK में और में भी accept करती हैं SAT को। So if you are applying through the UCAS portal, उस पे भी और Common App के through अगर आप apply कर रहे हो which is essentially a US वाला पोर्टल तो उसके ऊपर भी सैट एक्सेप्ट करते हैं। तो डोंट थिंक कि अगर आप सैट दे रहे हो एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट तो आप बस लम्स अप्लाई कर सकते हो एंड लम्स ने नहीं हुआ तो मतलब सैट जाया हो गया। और स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनके लिए उनकी गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। Second question most of the students had it was about the personal स्टूडेंट्स हमारे सेशन के अंदर होते हैं उन सब की पर्सनल स्टेटमेंट्स हम रिव्यू करने की उनको ऑप्शन देते हैं ना। अब से जो नए स्टूडेंट्स हमारे सेशन में आएंगे उनके साथ वी विल बी आल्सो ऑफरिंग देम वन ऑन वन सेशंस रिगार्डिंग देयर यूनिवर्सिटी एडमिशंस। सो हमारा एसेंशियली किकस्टार्ट में मिशन ही यही है कि जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस का सारा प्रोसेस है वो आप सबके लिए जितना आसान हो सके हम कर सकें। बाकी यही है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी उन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं हम उससे आपको मिलवा सके। तो इन शॉर्ट कि अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सेकेंडली रिसोर्सेज जैसे मैमा ने जिक्र किया हम सारी बुक्स लेटेस्ट टेस्ट डिजिटल टेस्ट हो गए और पुराने वाले पास पेपर्स भी नए वाले पास पेपर्स भी सब कुछ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे एज वेल एज वी हैव वेरी promising instructors who have been conducting these sessions for years now। तो इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आप लोग के कोई सवाल हैं इन जनरल तो वो भी वी वुड लव टू आंसर। सो मैमा कुछ लोग वो नंबर मांग रहे हैं इन द चैट बॉक्स। तो इवन इफ यू डोंट गेट इट इन द चैट बॉक्स जो आपका चैट के सेशन वाला ग्रुप है उसके अंदर ये वेबिनार का जो ग्रुप है उसके अंदर वी विल बी शेयरिंग द नंबर एज वेल। वी विल आल्सो बी शेयरिंग द फॉर्म
फॉर द सेशन। और जैसे दानिश ने भी इनिशियली मेंशन किया था, जो हमारे सेशंस होते हैं वो वीकेंड्स के होते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए जितना आसान हो सके। उसके अलावा हम रिकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा हम शेयर करते हैं, तो वो भी आप लोग साथ साथ देख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप लोग सब अपने सवाल भेज सकते हो और आपस में डिस्कस कर सकते हो। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उन स्पेसिफिक सवालों को सॉल्व करने के लिए। सो जितना हम लोग आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे ना थ्रू आवर सेशन हम करेंगे। वी वोंट बी लाइक दोज एकेडमीज जिसमें आप बस चले जाते हो, क्लास लेके वापस आ जाते हो और कोई वो नहीं होता इंटरेक्शन। हम नहीं चाहते कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो स्टूडेंट्स का आपस का इंटरेक्शन है वो कम हो जाए। सो वी रियली 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 इंकरेज कि आप लोग आपस में डिस्कशन भी करें। या सो डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? अली, वी हैव अ क्वेश्चन। क्या सैट का सिलेबस ई कैट में इस्तेमाल हो सकता है? अच्छा, सैट का जो बेसिकली सैट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं और जो ई कैट के अंदर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एडवांस मैथ वाले जो है वो थोड़े बहुत काम आ सकते हैं। एडवांस यानी ई कैट के अंदर जो है वो ज्यादातर जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस मैथ से ज्यादातर रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद एफएससी इसके ज्यादा करीब होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखना है कि एडवांस मैथ तक तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो उसके अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेशन आएगी, वो फिर आप उधर से ही आपको करनी पड़ेगी, यानी आपको एफएससी से। हाँ, यानी इंग्लिश का आई वुड से कि इंग्लिश उसके अंदर काफी इजी हो जाती है। ई कैट की जो इंग्लिश है वो काफी इजी है। सैट की अगर आपने अच्छे से इंग्लिश, यानी आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपका ई कैट के अंदर बड़ी अच्छी इंग्लिश हो जाती है, यानी उसके अंदर एक ही पैराग्राफ आ रहा होता है और आपको पैराग्राफ रीडिंग तो बड़ी अच्छे से आ जाती है। बाकी आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो चलो आपको प्रॉपर चाहिए होती है वैसे। आई थिंक हमारा लेट्स एंडेड, क्योंकि अब जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन किकसेट के नंबर के मुतालिक हैं, तो मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ ताकि पता चल जाए फिर स्टूडेंट्स को। अच्छा, या श्योर। और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए सैट स्कोर की रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आज सच अपना सैट स्कोर डिस्क्लोज नहीं करती, बट दे डू मेंशन एक एवरेज सैट स्कोर। इवन लम्स ने भी मेंशन किया हुआ था कि जो उनकी लास्ट एक्सेप्टेंस साइकिल थी उसके अंदर एवरेज स्कोर क्या था। तो एवरेज स्कोर इज बेसिकली जस्ट एन एस्टिमेशन ऑफ, और कह लो एन एवरेज ऑफ ऑल द स्कोर्स। तो दैट वाज 1350 फॉर लम्स, बट फॉर फास्ट वगैरह, again, for any university the safe score is above 1300, but people do get in with 1200 plus as well. All right, so that is it for our session. Thank you so much for joining, everyone. It was truly an honor to host an amazing set of individuals like you guys. And we are hoping कि आप में से बहुत सारे लोग हमें हमारे next session में join करेंगे. And inshallah, you guys are going to do great in whatever university you guys are going to end up in overall in life as well. So inshallah, inshallah, we'll be sharing the details for the session as well. Once again, announcing the dates for the session. Our next session is going to begin on 10th of August. And yeah, so we'll also be sharing the form ताकि आप लोग sign up कर सको. So that is it from our side. Thank you so much for joining in. Allah Hafiz. Thank you so much, Ali and Myra, for your time.